بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک یہودیوں کی ایک بہت ہی سنگین قسم کی چال کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہودی جو تھے اس دور کے جو تھے وہ علماء تھے، اور عرب والوں کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے یہودیوں کا جو تھا وہ راج تھا لوگوں کے دلوں پر بھی، اور جمایا ہوا بھی تھا، انہوں نے کچھ روب بھی جمایا ہوا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور تم امی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے بٹھائی ہوئی تھیں، اس لیے لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ کا دین جو ہے پھیلنے لگ گیا، آپ مدینہ میں تشریف لے آئے اور اسلام مضبوط ہونا شروع ہو گیا، تو جہاں پہ یہودیوں نے اور بہت ساری چالیں چلی، وہاں انہوں نے ایک یہ بھی چال چلی کہ انہوں نے اپنی اس شہرت کو اور اپنی اس مولویت کو کہ ہم مولوی ہیں اور ہماری بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس کو بھی ایک وار بنا کر جو ہے استعمال کیا، یعنی حملہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو انہوں نے اپنا ایک گروہ جو ہے وہ ترتیب دیا اپنے یہودیوں کا، اور ان سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کی مجلس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر صبح صبح جا کر تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنا اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو۔ اور پھر آمینو وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں اسلام قبول کر لینا، وکفروا آخرہ، اور دن کے پچھلے حصے میں اس کا انکار کر دینا۔ اور ریزن کیا ہے اس کی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان بھی دین حق سے پھر جائیں۔ اللہ اکبر! چال دیکھیے، انداز دیکھیے کہ کیسا وار کیا انہوں نے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ یہ مولوی ہیں، چونکہ ان کی بات سے لوگ متفق ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ان کے پاس آتے ہیں، تو جب یہ اسلام قبول کر کے انکار کریں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ اتنا اچھا دین ہوتا تو پھر یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے پہلے اس کو قبول کیا ہے، پھر انکار کیوں کر دیا؟ یعنی ایک تو ہے کہ قبول کرنا ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن وہ اتنی اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبول کیا ہی نہیں، یہ ایک بار آ کر دیکھتے تو پھر پتہ چلتا۔ لیکن یہ کتنی چال کتنی بھاری ہے کہ دن کے پہلے حصے میں اسلام قبول کرو، پھر آخری حصے میں یعنی پچھلے ٹائم انکار کر دو اور کہو کہ یہ وہ والا دین ہی نہیں، ہم نے تو اس کے اندر آ کر دیکھا ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا تھا، یہ تو وہ دین ہے ہی نہیں۔ تو اس کا انکار کر دینا، اور اس طرح تم جب کرو گے تو بہت سارے مسلمان بھی تمہارے ساتھ انکار کر دیں گے، کیونکہ تمہاری بات مانی جاتی ہے، تمہاری عزت ہے ان کی نظر میں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے۔ تو بہرحال مرتد زیادہ تر انہی جیسے ہی ہوتے ہیں، جو پکا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بن چکا ہوتا ہے وہ مرتد تو کیا بالکل ایک لفظ بھی سن نہیں سکتا، ان کے تو ایمان کی شان ہی الگ ہے۔ بہرحال یہ چال جو انہوں نے چلی یہ بہت بھاری چال تھی، اور یہ اسی ٹائپ کی چالیں آج بھی چلتے ہیں، یعنی آپ کے اندر ہی بیٹھ کر آپ جیسے مسلمان بن جائیں گے، آپ کی طرح نماز پڑھنے لگیں گے، آپ سے زیادہ ان کو تفسیر آتی ہوگی، آپ جب ان کی بات سنیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اور عالم بھی ہوتے ہیں لیکن وہ علم بھی سیکھتے ہیں کس وجہ سے؟ لوگوں کو پھسلانے کے لیے۔ جیسے یہاں پہ اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا نا کہ تم ایمان لے آؤ دن کے پہلے حصے میں، ایمان لاتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان بھی کفر میں آ جائیں، مسلمان پھر جائیں اپنے مذہب سے۔ تو یہ اس ٹائپ کی چالیں چلنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور
अपने लोगों को ये कुर्बान कर देते हैं इस हद तक कि तुम जाओ जाके मुसलमानों के मदरसों में रहो, वहां पे जाके तालीम हासिल करो, उन्हीं जैसा हुलिया अपनाओ। साल हर साल जिंदगियां लगा देते हैं ये अपनी इन चालों के पीछे। तो कुरान हमें बार बार इनकी ये चालें बता रहा है, ये कितनी गहरी साजिश है जो अल्लाह ताला ने बेनकाब फरमाई इनकी। और फिर इन्होंने उनको समझा कर भेजा, ये जो अपना अपनी टीम भेज रहे थे इस काम के लिए, उनको कहा वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, अपने दीन वालों के अलावा किसी और के पैरोकार मत बनना। ऐसा ना हो कि वहां जाके तुम्हें हमारी ये वक्फुरु आखिरहु वाली बात ही भूल जाए कि दिन के पिछले हिस्से में कुफर करना है, जाके पक्के पक्के मुसलमान बन के बैठ जाओ। बाकायदा उनको पीछे से ये भी जो है याद दहानी करवा के भेजा कि सिर्फ सही दीन वाला वही हो सकता है जो हमारे दीन का पैरोकार है। इस वजह से अ, ऐसे शख्स के पीछे न लग जाना जो हमारे दीन के अलावा किसी और दीन की तबलीग कर रहा है। इस बात को याद रखना, तुम एक मुहिम पे जा रहे हो, एक काम पे जा रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमने वहां जाके मुसलमान बन जाना है। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा छोड़ के अपनी बात दरमियान में फरमाई कि हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, यानी अल्लाह के हाथ में है हिदायत। अल्लाह जिसको चाहता है हम हिदायत देता है। इनका जो है वो इख्तियार थोड़ी चलना है, या अगर ये अब जेलिस हो रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो है हमारे से गद्दी छीनी गई है तो मुसलमानों को क्यों दी गई है इस चीज, इस तरह करने से कोई उनको वापस थोड़ी मिल जाना है। हसद करने से कभी किसी की नेमत ना छीनती है ना आपको मिलती है। तो ये तो एक इनकी बस घटिया चाल है। अन युक्ता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, अब दो वजूहात उन्होंने पेश की जिनको भेज रहे थे ना, ये कह करके तुम वहां पे जाके जो है दिन के पहले हिस्से हिस्से में इस्लाम कबूल करना और दूसरे में इनकार कर देना, और अपने दीन के अलावा किसी की पैरवी ना करना। इसकी दो वजूहात जो है उन्होंने पेश की, एक दुनियावी लिहाज से और एक आखिरत के लिहाज से। दुनियावी लिहाज से ये पेश की, अन युक्ता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, कि तुम्हारी सीट किसी और को क्यों दे दी गई है, क्यों किस तुम्हारे जैसी शरीयत जो है वो किसी और को दी गई है। ये चाल चलना हमारा हक है, क्योंकि शुरू से अब तक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हम ही इस गद्दी के वारिस थे। तो ऐसा क्यों हो गया है कि हमसे गद्दी छीन के हमारे चचा के घर में दे दी गई है। तो हमने जो है ये चाल हमारे लिए जायज है, हलाल है हमारे लिए, जंग है, ये जंग के अंदर हर चीज जायज होती है। तो दुनियावी लिहाज से ये उनको हुज्जत पेश की। और औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या मुसलमान गालिब आ जाएंगे तुम पर, तुम्हारे रब के सामने क़यामत के दिन। ये होगा कि अगर तुम लोगों में से किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हें दलील बनाकर मुसलमान ये बताएंगे कि ये अल्लाह ताला जी इन्हीं में से फलां फलां शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो ये बाकी जो हैं ये अपनी हट धर्मी की वजह से इस्लाम नहीं लाए, लिहाजा आप जो है इनको सजा दें। तो जब इनमें हम में से कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो फिर सारे के सारे हम एक साथ ही होंगे और मुसलमानों के पास भी कोई दलील नहीं होगी। तो ये इस तरह से समझा कर इन्होंने भेजा। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं इनको बता दो, फजल और रहमत अल्लाह के हाथ में है, नबूवत अल्लाह के हाथ में है। युती ही मैं यशा, ये नबूवत अल्लाह जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला कुशादगियों वाले हैं। जरूरी नहीं है कि एक को दे दी तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकती। और अलीम भी हैं, अल्लाह जानते हैं बेहतर कि किसको कब नबूवत मिलनी चाहिए और कौन नबूवत का हकदार है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के लिए जिसको चाहते हैं अपनी रहमत के साथ नबूवत के लिए चुन लेते हैं। वल्लाहु वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। सुभान अल्लाह। वमिन अहलिल किताबी मन इन तमनहु बिकिंतारी युअद्दिही इलैक, फिर यहूद नसारा की एक खूबी भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कि उनमें सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ बहुत बुरे भी हैं। और अच्छों में से कुछ लोगों ने फिर इस्लाम भी कबूल किया। जिन जो फितरत सलीम पे होता है इंसान, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे
कुछ भी हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, वो आखिरकार अपनी फितरत को ढूंढता ढूंढता इस्लाम तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो फितरत है। इस्लाम एन फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि कोई दीन है या कोई इबादत का तरीका है अलग से। ये फितरत है, ये जिंदगी गुजारने का एक यानी वे ऑफ लाइफ है ये। ये नहीं कि कोई जैसे ईसाइयों का है, या ईसाइयों की जिंदगी में ये होता है कि जो उनका पादरी होता है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल कट के रह जाता है, या और मजाहिब में भी जो उनके मजहबी पेशवा होते हैं वो बिल्कुल दुनियादारी से कट जाते हैं और उनको इजाजत नहीं होती शादियां करने की, फैमिलीज के साथ रहने की, या फिर गैदरिंग्स में आने जाने की, दुनियादारी की जो गैदरिंग होती है उनमें आने जाने की। तो इस्लाम मजहब ऐसा है जो कहता है कि तुम सब कुछ करो, लेकिन सिर्फ तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए। सिर्फ तरीका बताता है हर चीज का, खाने पीने का तरीका बताता है, सोने जागने का तरीका बताता है, बस उस तरीके को, उस वे ऑफ लाइफ को इस्लाम कहते हैं। तो जो भी फितरत सलीम पे होता है वो अपनी फितरत को ढूंढता ढूंढता कुरान तक पहुंचता है और फिर इस्लाम इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह की रहमत से। और जिनकी फितरत मसख हो चुकी होती है वो फिर इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते, ना इस तक पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यहूदो नसारा में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनके पास अमानत के तौर पर खजाना रखवा दें, सोने का पहाड़ भी उनके पास रखवा दें, तो युअद्दीही इलैका, वो इतने अमानतदार हैं कि वो पूरे का पूरा खजाना आपको बिल्कुल सेम टू सेम पहुंचा देंगे, एक जर्रा भी अंदर से जाया नहीं होने देंगे, चुराएंगे नहीं या फिर खयानत नहीं करेंगे उसके अंदर। वमिनहुम मन इन तमनहु बिदीनार ला युअद्दीही इलैक, और उनमें से वो शख्स भी है कि अगर आप उसके पास 1 रुपया भी रखवाएंगे तो ला युअद्दीही इलैक, वो आप उसके उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको आपकी तरफ वापस नहीं लौटाएगा। और इल्ला मादुम अलैहि काइमा, हाँ अगर आप उसके सर पे खड़े उससे मुतालबा करते रहेंगे, बार बार उसको याद दहानी करवाते रहेंगे और उससे मांगते रहेंगे, तो फिर वो आपको दे देगा, वरना वो खा जाएगा, उसको भूल जाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, ये इस वजह से है, अमानत इसलिए अदा नहीं करते, कहते हैं कि अनपढ़ों का माल खाने में हमें कोई गुनाह नहीं। क्योंकि हाँ इनके हाथ में था, शरीयत इनके हाथ में थी, तो जैसे चाहते थे मरोड़ते थे उसको, तोड़ते मोड़ते थे और लोगों को बता देते थे। तो इन्होंने एक ये भी मसला बताया हुआ था कि हम अहले किताब हैं, तो हर शख्स के माल पे हमारा हक है, खुला हक है हमारा, हम जिसका चाहे खाएं जिसका चाहे छोड़ें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि हम अहले किताब हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस बात की तरदीद फरमाई। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह पर झूठ मान रहे हैं और ये जानते हैं कि ये झूठ मानते हैं। बला मन औफ़ा बिअहदिही, बल्कि कानून तो ये है, अल्लाह का कानून तो ये है कि जो शख्स अपना अहद पूरा करेगा, वत्तक़ा, और अल्लाह ताला से डरता रहेगा, फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन, तो अल्लाह ताला ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत फरमाते हैं। यानी अल्लाह के यहाँ ये नहीं है कि कोई अहले किताब है या कोई नबियों की औलाद है या कुछ भी है। अल्लाह के यहाँ ये चीज अहमियत नहीं रखती, नबी की बीवी हो, नबी का बेटा हो, नबी का बाप हो, फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को फर्क पड़ता है तकवे से, यानी फर्क पड़ने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इसी की बेस के ऊपर फैसला फरमाते हैं। किसी को जन्नत में जाना है तो उसी की बेस पे, और किसी को जहन्नम में फेंकना है तो उसी की बेस पे, तकवा की बेस पे ही ये सब फैसले होते हैं। किसी के साथ रिश्तेदारी की बुनियाद पे या अहले किताब होने की बुनियाद पे किसी के साथ मुआमला नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसके अमल को देखा जाएगा, तकवा को देखा जाएगा। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, फिर अल्लाह ताला ने इनकी इस बात की तरदीद फरमाई कि जो लोग अपने वादों को और अपनी कस्मों को तोड़ देते हैं दुनिया के माल के बदले, यानी वादा होता है ना, अमानत भी एक वादा होता है कि मैं आपको लौटाऊंगा या
जो अमानत रखवा रहा होता है वो उससे वादा ले रहा होता है कि ये मेरी अमानत आपने संभाल के रखनी है और मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा आपसे। या फिर कसम खा लेते हैं किसी भी मामले पे, अल्लाह को गवाह बना लिया जाता है। तो फिर जिसकी नीयत खराब हो जाती है वो उस वादा को तोड़ देता है और कसम जो है तोड़ दी जाती है दुनिया के माल के बदले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपनी कसमों को और अपने वादों को दुनिया के हकीर माल के बदले तोड़ देते हैं, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सुभान अल्लाह, देखिए कितना वाज़ेह अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और फिर अल्लाह अकबर, अगली सजा चेक कीजिए कि कितनी सख्त है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। और आजकल हमारे मामलात भी यही हैं। ये तो यहाँ पे यहूद और नसारा को अल्लाह ताला बता फरमा रहे हैं ना, लेकिन हमें क्यों सुना रहे हैं? हमें इसलिए सुना रहे हैं कि हम भी यही हमारे साथ भी यही मामला होगा। ऐसा नहीं कि हम अल्लाह के महबूब की उम्मत हैं तो हमारे साथ कोई नरमी बरती जाएगी या हमारे साथ जो है रियायत का मामला होगा। नहीं, अल्लाह के यहाँ कानून एक ही है सबका। चाहे कोई अल्लाह के महबूब का उम्मती हो, चाहे कोई अल्लाह के वली, अल्लाह ताला के दोस्त का उम्मती हो, किसी का भी उम्मती होगा, अल्लाह ताला सबके साथ तकवे की बुनियाद पे फैसला फरमाएंगे। और कसमों को तोड़ देना और वादों को तोड़ देना और माल खा जाना, और खास तौर पे इन मामलात में, ये जो दुनियावी मामलात हैं जिनकी बेस पे इस्लाम और कुफर में फर्क जो है वो नजर आता है, दूसरे मजाहिब में फर्क नजर आता है, इनके ऊपर अल्लाह पाक ने कितनी कड़ी सजाएं रखी हुई हैं कि ना अल्लाह उनसे गुफ्तगू फरमाएंगे, सबसे पहले तो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, फिर उनसे अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, फिर उनकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे और उनको पाकीज़ा भी नहीं करेंगे गुनाहों से, यानी उनके गुनाह माफ नहीं करेंगे, ना ही किसी भी तरह जो है वो जन्नत के हकदार नहीं ठहरेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। तो हमें भी इस चीज को अपने लिए भी देखना है, और अगर हमारे अंदर ये आदत है, नाउजुबिल्ला, अल्लाह की पनाह में आते हैं, तो हमने अपने वादे आइंदा नहीं तोड़ने, अपनी कस्में नहीं तोड़नी, और लोगों का माल खास तौर पे खाने की नीयत से ये सारी चीजें बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देनी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे दे, इसी कुरान की बरकत से, इस पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे दे। व इन्न मिनहुम लफरीकन यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब, फिर उनकी एक और हरकत जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताब तौरात पढ़ने में जुबान को घुमाते हैं, मरोड़ते हैं। लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम उसको किताब का हिस्सा समझो, तौरात का हिस्सा समझो। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी एक दो ऐसी वीडियोस मैंने देखी वक्तन फवक्तन, बहुत पहले भी और करीब करीब भी, कि रमजान में कुर्रा जो तिलावत कर रहे होते हैं ना, वो अरबी बना बना के मुंह के अंदर ही कुछ गड़बड़ सी कर रहे होते हैं और वो आयत नहीं होती। मतलब कोई पढ़ा लिखा या हाफिज कुरान उनको सुने तो उनको पता चलता है कि ये आयत नहीं है, लेकिन अगर वो जो पीछे सारे लोग खड़े होते हैं, चूंकि उन्होंने खुद कुरान नहीं पढ़ा होता, तो वो समझ रहे होते हैं कि कारी साहब बहुत प्यारा कुरान पढ़ रहे हैं, हालांकि वो कुरान नहीं होता, वो अपने पास से अल्फाज बना बना के आखिर में आयत का लास्ट वाला हिस्सा जो यालमून तालमून ये वाले लफ्ज हैं ये बोल देते हैं, तो लोग समझ रहे होते हैं कि ये तिलावत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये कोई मजाक नहीं, चाहे कोई वीडियो बनाने के लिए इस तरह करे या किसी भी वजह से करे, मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और यहाँ पे अल्लाह पाक यहूदियों के लिए भी ये फरमा रहे हैं। ये हम लोग तो जाहिरी माना में ले रहे हैं ना कि कुरान पाक को इस तरह करके नाउजुबिल्ला वो अल्फाज जो कुरान का हिस्सा नहीं है उनको कुरान बना के पेश करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। यहूदी जो थे वो इससे अगला जुर्म करते थे कि वो लोगों को मसले ऐसे बताते थे, वो लोगों को अहकामात ऐसे बताते थे कि
तिलावत ऐसे करके पेश करते थे जैसे वो तौरात में से पढ़ के सुना रहे हैं। हालांकि वो तौरात में नहीं होता था, वो उनके अपने अल्फाज होते थे, मरोड़ मरोड़ कर जुबान को घुमा घुमा कर बोलते थे और फिर उसका मतलब करके सुनाते थे कि ये इसका मतलब है। और यानी अपने पास से घड़े हुए मसाइल। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयकूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, और वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह का कलाम है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाही, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ अहकामात आए हुए नहीं होते थे। वयकूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यालमून, और वो अल्लाह पर झूठ बोल बांधते थे और वो जानते थे कि वो झूठ बांध रहे हैं। और इसी तरह ये जो होशियारियां करते हैं आजकल लोग, ये भी जान रहे होते हैं, जानते होते हैं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये कलाम नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोज ने पागल किया हुआ है और कुछ जहालत की वजह से जुर्म कितना बड़ा हो रहा है इसका अंदाजा ही नहीं है। मा कान लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह। अल्लाह ताला ने फिर इनकी जो नजरान के ईसाइयों का जो अकीदा था उसकी तरदीद फरमाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह, और तीन खुदाओं वाली वो सारी बात। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी बशर की ये शान नहीं कि अल्लाह उसको किताब और हिकमत और नबूवत दे, फिर वो लोगों से ये कहता फिरे कि मेरी इबादत करो, अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह की इबादत ना करो बल्कि मेरी इबादत करो। वलाकिन कूनू रब्बानीजीन, जाहिर है कि अल्लाह की चॉइस है। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला किसी गलत इंसान को नाउजुबिल्ला नबी बनाएंगे और वो जाके जो है नबूवत अल्लाह का कलाम पहुंचाने की बजाय अपनी अपनी तरफ लोगों को लगाने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो यही कहेगा कूनू रब्बानीयीन, एक रब वाले बन जाओ। लिहाजा ये ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बुहतान बांधते हैं, जो अगर ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी है कि तीन खुदा हैं, या वो भी खुदा के बेटे हैं और उनकी भी इबादत और उनकी वालिदा की भी इबादत, ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बुहतान है। क्योंकि किसी बशर की ये शान नहीं कि जब अल्लाह उसको नबी बनाए तो वो जाकर ये लोगों से कहता रहे कि मेरी इबादत करो, बल्कि वो यही कहेगा कि तुम एक रब वाले बन जाओ। इसलिए कि तुम तौरात में ये पढ़ भी रहे हो और पढ़ा भी रहे हो, और ना ही बशर ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो।